Assalamu alaikum and welcome everyone. My name is Daniel Hayat and I'm hosting this Seacoast University COVID-19 webinar series. So this is our second webinar और इसका जो topic है which is really interesting and close to my heart as well, and that is youth perspective on COVID-19. How to be entrepreneurial and be more productive, and how we can use this time to learn new skills and create new businesses during the lockdown. So considering the fact that 63% of the population of Pakistan is young people, we are the second youngest country in South Asia after Afghanistan. So there is this huge potential. कोई हमारे potential की कमी नहीं है. हमारा नौजवान जब यूरोप और यूएस में जाता है वो कारनामे करता है, वो सक्सेसफुल entrepreneur बनता है, मतलब the person has a successful career over there. लेकिन जब पाकिस्तान में होता है तो काफी मसले होते हैं, वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाता. क्या वजह है? रिसोर्सेज की कमी है, या मोटिवेशन की कमी है, या एक डायरेक्शन, मेंटरशिप या गाइडेंस की कमी है. तो इस सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे आज अपने इस मुकालमे में. हमारे डायलॉग में हम इस चीजों को देखेंगे कैसे एक इंसान एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट बिल्ड कर सकता है, कौन से स्किल्स डेवलप कर सकता है, और नए बिजनेसेस कैसे जो है ना यहाँ पे वो डेवलप कर सकता है. तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त आज का पैनल है. दीज आर यंग पीपल, यंग लीडर्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, और ये एंटरप्रेन्योर्स हमारी ही सोसाइटी के खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर से ही बिलोंग करते हैं, और हमारी तरह ही हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ही पले बड़े हैं. बट दीज गाइज आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. क्या वजह है कि दे हैव अचीव्ड दैट पोटेंशियल जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते. So let me introduce them without any further ado. The first person that we have on the panel is Mr. Salman Saeed. Salman is the CEO of Nucleus, which is a wonderful initiative of developing individuals, communities, and organizations. And then we have Ms. Nadia Sarwar Bibi. Nadia Sarwar is the CEO of Sehat Karwan, which is the brilliant initiative in the healthcare sector. And then we have Hira Irshad, renowned name, and she is the CEO of Apris Technologies, which is a startup based on the healthcare, on a surgical device, a brilliant initiative in Khyber Pakhtunkhwa. तो आज हम मुकालमे का आगाज इससे करेंगे. Hira, my first question will be towards you कि हमारी अगर आप माशरे में देखें, हमारी सोसाइटी में एक सोच है, और वो सोच ये है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ेगा और फिर सरकारी अफसर बनेगा, और सरकारी अफसर की चूंकि एज होती है वो 30 इयर्स तक होती है. तो 30 साल तक बच्चे से मेहनत करवाएंगे कि वो एक सरकारी अफसर बन जाए. अगर तो नहीं बनता तब वो जाएगा अपने बाकी के शौक पूरे करने में, एंटरप्रेन्योरशिप बने की साइड पे जाएगा या कोई बिजनेस पे. तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपको भी ये चीज फेस करनी पड़ी कि आप पहले सरकारी साइड पे देखो, गवर्नमेंट सेक्टर पे जाओ, या आप पैशन से आई हैं या आप मजबूरी से एंटरप्रेन्योरशिप में आई हैं? थैंक यू दानियाल. आई कंप्लीटली अग्री कि ऐसे ही होता है हमारी सोसाइटी में, दैट यू नो यू पुश टुवर्ड्स अ करियर. बट on that I'd say that you know everybody is not fit for jobs, everybody is not fit for entrepreneurship. Okay, business करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. And if you don't have a family that has a big business background, then you're already lacking that learning curve. ठीक है, जो कि हमें लगता है कि नहीं सब खुद से हो जाएगा. For me, I think you know I have a pair of parents which is just you know everybody says their parents are amazing, लेकिन मेरे parents जो हैं अंग्रेज parents से भी ज़्यादा liberal और understanding हैं. So they've always told us कि do whatever you want to do. So after I graduated from IIM Sciences, I just moved to Lahore. I said कि मुझे startup करना है, so they said okay. And then after I moved to Lahore, then I found myself a place to stay at. So it's that chill. You know, they're very open for us to go for experiences. So that is where at Lahore, that's where I understood the startup culture and the startup industry and everything. And I actually fell in love with it. Then I did a 9-to-5 job with Telenor, but I really didn't like that culture. So I came back. It's absolutely because of passion. I'm running a company that's very high tech. I don't have a technology background. So I had to
learn a lot of things, learn a lot of engineering just to be able to run that company. But I love it. I absolutely love it. परफेक्ट. सो बिल्डिंग ऑन दैट, मुझे सलमान आपकी तरफ मेरा क्वेश्चन जो है सेकंड होगा कि बाहर चूंकि आपका एक्सपीरियंस, आई नो योर प्रोफाइल, आप बाहर काफी घूमे हो, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि क्या फर्क है पाकिस्तानी सोसाइटी में. एक नौजवान जो है वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर जॉब पे आता है. बाहर की सोसाइटी में अगर आप देखें, काफी नौजवान जो होते हैं काफी यंग एज से, मतलब दे आर जस्ट 15-16, उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, उनके अपने स्टार्टअप्स होते हैं. तो वेयर इज दिस गैप, वेयर ये फर्क कहाँ पे आता है कि हमारा नौजवान ग्रेजुएशन, मास्टर या पीएचडी या बैचलर्स के बाद ये जाके सोचता है कि हाँ भाई कोई स्टार्टअप मैं खोल सकता हूँ, बाहर जाके स्कूल और हाई स्कूल के लेवल से ही उनमें वो सोच आ जाती है. तो कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम काम कर सकते हैं कि ये सोच डिवेलप हो जाए? So, thank you, Danya, first of all, for having us on this call. So, एक तो चीज होती है कि ओपिनियन होता है हर बंदे का. तो what I'm about to answer this question is not exactly an opinion, but it's the technical fault जो हमारे माशरे में है, and especially the South Asia माशरा, कि जो हमारे पेरेंट्स है वो हमें इतना नर्चर करते हैं और इतना पैम्पर करते हैं कि उन्होंने ही हमारी मेंटालिटी में ये इंजीनियर किया हुआ है कि they are going to support us until the last semester of university. एंड उसके बाद जो माशरे की परंपरा है वो ये है कि ओपन डे होता है यूनिवर्सिटी में और ऑफ कंपनीज आके हमें हायर करते हैं, और उसके बाद इज द टाइम जिसमें हम लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ते हैं, और तब तक हमें वो लोग पैम्पर करते हैं. अब अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी खत्म होती है 22-23, और तब तक हमारे जो ब्रेन की इंजीनियरिंग इतनी सॉलिड हो जाती है कि हमें यही लगता है कि बस यही पैम्पर करते रहेंगे हमें पूरी जिंदगी, एंड वी गेट इनटू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन जिसमें आइडियाज के बारे में बस ठीक है, आई हैव my dad, he's going to give me the pocket money, और इसी तरह मुझे अभी एक और डैड चाहिए. So then we go to offices and we look for another boss who is going to pay me at the end of the next month, जिस तरह घर में मुझे पेमेंट मिलती थी. तो ये वाला कल्चर है, ये बाहर नहीं है. As you already know, हम लोग बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज में देखते हैं कि 18 के बाद they kick the guy out, the kid out, even if the parents do not want to kick their kid out. बाकी मुआशरा तुम्हें नीचा देखेगा कि अच्छा तुम अभी भी पेरेंट्स के साथ रहते हो when you are above 18, they actually laugh at you. तो उसकी वजह से एक मुआशरा बाहर बना हुआ है that they have to push themselves, क्योंकि वो 18 के बाद बाहर निकलेंगे ही घर से, क्योंकि अदरवाइज पीपल विल लाफ एट देम. जब वो बाहर निकलेंगे so they have to get a job, and शुरू की जॉब उनकी हीरा की तरह या नाजिया की तरह सीईओज नहीं होते. शुरू में वो लोग मैकडॉनल्ड में काम करते हैं, they are wiping the floors and they don't care about it कि किस तरह की जॉब है, क्योंकि उस वाले माशरे में ये चीज इस तरह की बनी हुई है. काम करता. अब बताएं, अगर मैं पिज्जा हट में कहीं फ्लोर वाइप कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त आके देखेगा मुझे कॉलेज का, तो कहेगा, वो देख के हंसेगा, तो क्या कर रहे हो, हालांकि आई एम जस्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मेंटालिटी इस तरह की बनी हुई है. सो मैं इसमें फॉल्ट बेसिकली इस पूरी पुरानी परंपरा को देता हूँ और हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग को देता हूँ कि वो बहुत ज्यादा पैम्पर कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सोचता ही नहीं कभी इस बारे में कि मुझे खुद से कुछ करना है. एंड अंटिल द टाइम ही थिंक्स अबाउट इट, उस वक्त तक उसकी मेंटालिटी और ब्रेन इतना स्ट्रांगली इंजीनियर हो जाता है कि वो कहता है बस यही तरीका है जिंदगी का. अंटिल 22 वो 4 साल जिसमें तुम उसको मेंटालिटी चेंज कर सकते, शिफ्ट कर सकते थे. आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सोसाइटीज, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा स्टार्टअप्स की तरफ रागिब नहीं होते लोग, क्योंकि वो मेंटालिटी ऐसी. तो जितना मुझे लगता है सलमान, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट समथिंग एन इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब ये एक नौजवान की इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होती है, इसमें पूरी कम्युनिटी एफर्ट होनी चाहिए, कम्युनिटी माइंडसेट होना चाहिए. क्योंकि एक नौजवान अगर कहता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कुछ और एक्सपेक्ट करता है उनसे, तो मतलब देयर इज क्लैश, द माइंडसेट का जो है वो पुरानी सोच और एक नई सोच, उसमें जाके कहीं पे क्लैश है. सो आई बिलीव कि यहाँ पे अगर हम इस लाइन पे भी देखें कि हमारी काफी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और काफी ज्यादा सेशंस इन चीजों पे होती है कि हाउ टू लाइक इम्प्रूव और गार्निश द स्किल्स ऑफ द यंग पीपल, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ओल्डर जनरेशन
के पे भी फोकस करना चाहिए कि वहां पे भी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि उनकी भी ग्रूमिंग हो सके, उनकी भी वो सोच बदल सके कि जमाने के साथ कैसे चला जाता है, क्योंकि नई सोच आएगी, उनको लीड आपने आपने फ्रीडम देनी है, उनको आगे लीड उनको देनी है कि आप वो कैसे आगे जाना चाहते हैं. सो थैंक्स फॉर दैट Exactly. वंडरफुल perspective of yours. Nadia, my next question is for you, and that is very simple question. Why to become an entrepreneur at all? जबकि हमारे यहाँ ये सोच है एंड बहुत आम सोच है. आप किसी से भी पूछो ना, यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने बिजनेस करना है तो पैसा होना चाहिए आपके पास. क्या आपको लगता है ये सोच सही है? बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसे का होना लाजमी है? ये लाजमी है कि आपको एक मालदार बंदा होना चाहिए, पहले आपके पास जायदाद होनी चाहिए, फिर आप जाके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या स्टार्टअप खोल सकते हैं, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ओके, थैंक यू सो मच दानियाल फॉर हैविंग मी टुडे. मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि पैसा नहीं, पैशन. आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए किसी भी चीज को करने का. कि अगर आपके अंदर वो पैशन मौजूद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, टू बी इन द मेडिकल फील्ड, और उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं. आई वोंट से कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं कहा था, डेफिनेटली उन्होंने मुझे कहा था, मुझे बाय फोर्स कहा था. बिकॉज मेरे पास दो ऑप्शंस थे. बिकॉज शुरू से ही आई वाज इनटू टेक्नोलॉजी एंड राइटिंग ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स एंड कंटेंट, और बहुत अरसे से मैं ये काम कर रही थी when I was very little, और not that much little कि मैं बहुत छोटी थी. तकरीबन 7th-8th ग्रेड से मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, और मुझे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग और इन चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया था. और मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कि मैं जाके आगे मेडिकल फील्ड में जाऊंगी. आई वांटेड टू बी समवन के या मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूंगी और या मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं. So at that time मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, you should be a doctor and we want our daughter to be in the medical field. तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेडिकल में चली गई. लेकिन मेरा जब पैशन था वो वहीं पे था. सो बीइंग इन द मेडिकल करियर मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स सफर हो रहे थे. तो वहां से मुझे उनके लिए फील होना स्टार्ट हुआ कि इन पेशेंट्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें विद ईज एंड एक्सेसिबिलिटी दैट would be accessible for all, and the patient don't need to bribe the doctor or the his PA for early appointment. So I discussed this idea with one of my friend and she supported me and she said yes, why not, we should start online appointment system. Or then we started working on that. We were in the 3rd year medical स्कूल उस टाइम पे, और हमने उस पे काम करना शुरू किया. एंड वी फाइनली लॉन्च्ड आवर स्टार्टअप इन आई गेस वी वर इन द एंड ऑफ द 4th ईयर, और फाइनल ईयर में हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया था. सो आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं बिजनेस साइड से नहीं हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल था. कैन यू बिलीव मी कि मुझसे एक दफा किसी ने पूछा व्हाट इज योर MVP, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज MVP, आई डोंट नो. एंड देन आई स्टार्टेड applying in those online courses for entrepreneurship and business. And मैं यहाँ पे मरियम अरशद को mention करूंगी because she is my mentor and she helped me a lot. उन्होंने मुझे इतना सिखाया, छोटी बातें business की, MVP क्या होता है, business canvas model क्या होता है, आपने कैसे बताना है कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, वो चीजें हमने सीखी. Then we started to applying in different incubation centers, और फिर हमने Dushal से incubation ली 6 months की. that helped us a lot and mashallah now our startup is recognized globally. और मैं again यही कहूंगी कि ये मेरा passion था कि आज हम यहाँ तक आए हैं. और recently हमारा startup को उन्होंने recognize किया in UK press release, और बाकी different मोरक्को में भी अभी हम अपना setup launch करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, नेपाल में भी launch करने जा रहे हैं. हमने अभी तक 6,000 patients को सिर्फ COVID में consultations प्रोवाइड किए. सो इट्स ऑल अबाउट योर पैशन. क्योंकि मैंने मेडिकल कर लिया, मैंने अपनी हाउस जॉब भी कंप्लीट की, मैंने एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू बिकॉज आई हैव टू डू दैट. मैं नहीं कह सकती थी मैंने नहीं करना, बिकॉज उसके बाद फिर जो होना था हमारी सोसाइटी में वही होना था मेरे साथ भी. तो सो आई फुलफिल देयर ड्रीम एंड आई आल्सो फुलफिल माय पैशन. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट पैसा. हमने बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया था. तकरीबन हमें एक ग्रांट मिली थी 1 लाख की. एक चैलेंज में हमने अप्लाई किया, वी वॉन दैट ग्रांट, और उससे हमने स्टार्ट लिया. एंड देन वी अप्लाइड इन KPIC एंड देन वी वॉन अ ग्रांट ऑफ 1 million. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे फिर हमने अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया. एंड नाउ आवर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड. सो इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड योर
commitment to your passion. So if these things are with you, you can excel in anything. You don't मतलब ये need कि paisa for all that. मतलब पैशन पहले होना चाहिए, पैसा जो है Obviously. बाद में वो आना आ चाहिए, जाता है आपके पास. वो आ एग्जैक्टली जाता है। पैसा आपके पास आ जाता है अगर आपके पास पैशन होगा किसी भी चीज को करने. मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना शुरू करूंगी. कुछ लोगों का पैशन होता है हमने यूट्यूब चैनल रन करना, एंड वो एक छोटी सी वीडियो से स्टार्ट लेते हैं और बाद में इतना अर्न कर रहे होते हैं, और छोटी सी कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग से स्टार्ट लेते हैं और बाद में इतना ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, योर कमिटमेंट टू योर पैशन. पहले आपके पास पैशन होना चाहिए कुछ भी करने का, चाहे वो कोई भी काम है. सो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू बिजनेस ओनली. सही नहीं, दैट्स आई थिंक अ ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव कि पैशन पहले होना चाहिए. और पैशन आई बिलीव बिल्ड तब होता है ना जब आपको लाइफ में कोई मुश्किलात आपके सामने आते हैं ना, मतलब आप कोई चीज करते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ पे मसला आ रहा है, so you are able to identify कि हाँ भी यहाँ पे मसला है, we can like work on this thing. So thank you for that, Nadia. And Hira, my question to you would be कि हम काफी यहाँ पे अपनी सोसाइटी में सुनते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंड कुछ लोग अपने आप को बिजनेस पर्सन या बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन कहते हैं. What do you think, फर्क क्या है एक एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेस पर्सन में, या मतलब देयर सम सॉर्ट ऑफ अ जर्नी फ्रॉम फॉर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दैट स्टेज टू बिकमिंग अ बिजनेस पर्सन, या वाइस वर्सा, या देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीस टू, मतलब क्या, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? So Daniel, I would say that generally it's just, juggling the words. But, if we come to a definition, then it means that if you're an entrepreneur, it means that you have taken a problem from scratch and you're bringing an innovative solution to that, right? And if you are a business person and you're running a business, then it can really be any opportunity that you look at. It can be anything conventional, all right? Lekin I generally think that the kind of society that we live in, Pakistan mein hum kuch bhi nahi karte abhi, okay? When I was setting up my office for Apris, I went to Islamabad to get some furniture for the office. And I went, aur wahan pe sara wo furniture was also Chinese. So I was like, why is this so? Hum ab tables bhi nahi banate office ki. So they said कि नहीं, अगर हम बनाएंगे उसमें महीना लगता है, Chinese people make it in a day or two. So मुझे लगता है कि अभी जो हमारे economic conditions हैं या जो भी हैं, I think it's quite all right who calls themselves an entrepreneur, who calls themselves a business person, चाहे startup है आपका, चाहे आपका business है. What matters is that you should be earning money. So I don't personally believe in social enterprises because I believe every enterprise is a social enterprise. If you're making money, you're employing people, you're paying taxes, चाहे आप business करें, चाहे आप entrepreneurship करें, चाहे आपका startup हो, सही है, आपको economy के अंदर कुछ add करना है. और जब भी आप economy के अंदर कुछ add करते हैं तो आप socially कुछ अच्छा already कर ही रहे होते हैं, because there's a demand for that thing. If I'm doing something जिसका demand है ही नहीं, तो I can never generate money with it. So I really appreciate that, there are so many different names, but I think it all should converge to what are you doing, what are you adding into the economy, how are you improving your lifestyle and the lifestyles of the people who are working with you, and how many people are you employing. That's it. That's simple math for me. Yeah. So if I rephrase the same question, there is a guy, वो अपनी एक बार्गेन जो है ना, गाड़ियां जो है ना सेल करता है, वो बार्गेनिंग उसकी करता है. एंड देन इफ वी सी पार्क व्हील्स, पार्क व्हील इज a lot of digital space. किसको नहीं पता पार्क व्हील्स का, one of the most successful startups in Pakistan. Absolutely. So do you think there is some difference, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो आवाम है, so जो बार्गेन का बंदा होता है वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन जिस स्केल पे एक पार्क व्हील्स वाला जो है वो कर रहा है, so there's there's something that's a lot different than what the other guys is doing. So maybe I'm not sure is that what we can regard as a business versus entrepreneurial mindset or something like that? So what do you think, उसमें कुछ फर्क है या it's the same thing but different perspective?
दानियाल फर्क तो है, ठीक है. देखें, फर्क इसलिए है बिकॉज माइंडसेट का फर्क है, ठीक है. वो पार्कव्हील से वो एक बहुत ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट ही इज वर्किंग इन द सेम स्पेस, दैट इज द कार्स मार्केट, ठीक है. एक बंदा अगर बार्गेन लगा रहा है, ठीक है, वो भी उस स्पेस में काम कर रहा है, लेकिन वो उस सारे इशू को टोटैलिटी में नहीं देख रहा और टोटैलिटी में सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है. सो आई वुड अगेन से कि अब ऐसा नहीं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ऑलराइट. सो आई एम नॉट गोना से कि जिसने बार्गेन लगाया हुआ है वो अच्छा नहीं कर रहा, यू नो, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है. या पार्क व्हील्स जो है वो दैट्स मच बेटर. इन द एंड बोथ आर डूइंग बिजनेस, बोथ ऑफ देम, ठीक है. आप अगर क्रिएटिव बिजनेसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन द आइडिया ऑफ क्रिएटिव बिजनेसेस चेंज ओवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल वॉज a creative business at one time, now it's a conventional business, or mobile phones now is a conventional business. So yeah, I think the difference would be कि जो startups होते हैं वो बहुत कम पैसों के साथ काम करते हैं, so they have to be more creative about how they do things, right? An idea like Appress at this moment, I wouldn't say it's something that has never been done in Pakistan before, तो हम पहली दफा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में हो चुका है. It is a very conventional kind of business because it's hardcore manufacturing. लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, जिस प्राइस पे हम करें कभी नहीं हुआ, the technology we brought in वो कभी नहीं हुआ. But then I again think that the nature of our business and the way we will develop our distribution systems and the way we will interact with government departments, all of that, nature of business is very conventional. The product is very creative. So I think, you know, I think it really also differs from person to person. कुछ तो कन्वेंशनल बिजनेसेस आई अंडरस्टैंड हैं जिसमें आपको एक क्रिएटिविटी, एक ने दुकान लगा दी, आपने भी एक और दुकान लगा दी, ठीक है, लेकिन आई वुड स्टिल से कुछ ना करने से भी वो बहुत बेहतर है, या शायद सिर्फ नौकरी करने से भी वो बहुत बेहतर है, बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग अदर पीपल. Awesome, yeah, that's I think a brilliant answer to that question, because काफी लोग इस चीज को मतलब इसको वो कहते हैं कंफ्यूज करते हैं कि what is this terminology. So what you are saying is that we should not, you know, like stick to or be limited to the terminologies. दोनों चीजें ही अपनी जगह सही है. That's, it depends on you how you define it. So yeah. Sorry. So Nina, a lot of people have, in the startup industry, people have demonized conventional businesses, okay? Yeah. Like you're not thought of as a good person, या क्या मतलब अच्छा conventional business ही तो कर रहे हैं. It's a lot harder than a job. I respect all the people जो conventional businesses करते हैं. I think we need to bring them on board as well. And बहुत सारे startups फेल भी इसलिए होते हैं, the rate is 98%, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं in the idea कि conventional बिल्कुल नहीं करना, जो possible ही नहीं होता. So I think, you know, we should take everything together. Yeah, wonderful. अच्छा सलमान, आते हैं आपकी तरफ. मैं एक दफा दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो अप्लाई कर रहा था बायर पीआरशिप के लिए एक फॉरेन कंट्री के लिए. तो हमारे बीच ना एक बहस छिड़ गई. मेरा दोस्त का उसका ये पर्सपेक्टिव था कि यार मैं बाहर जाऊंगा तब मैं कंपनी एक सेटअप करूंगा, फिर मैं जो है एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होगी, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा. मैं इस पर्सपेक्टिव में था. मैंने कहा भाई अगर आपने पीआरशिप के लिए जाना है फिर बाद में बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाई नॉट डू इट इन पाकिस्तान. यहाँ पे आप क्यों नहीं करते. सो ही टोल्ड मी कि यहाँ पे चूंकि आपके आइडियाज चोरी हो जाते हैं, यहाँ पे द मोमेंट यू ब्रिंग समथिंग टू द मार्केट आपका कॉपी हो जाएगा, या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और यहाँ पे काफी इश्यूज है. तो what do you think on that? क्या Pakistan, is it not a good market for businesses या for startup? What's your take on that? Okay, I remember this question, but in the meanwhile, I also want to add a bit to the question that you asked Hira about business है उसमें फर्क, because this is a topic that कभी-कभी I know that these youngsters are kind of more inclined towards startup because उनको वो cool लगता है. They want to go and sit among these yellow and blue walls of Durshal और NIC Peshawar के बड़ा मजा आएगा बैठेंगे. But at the end of those 6 months या 1 year cohort कुछ होता नहीं है solid. So मैं हमेशा लोग कहता हूँ कि startup का word ही मत use करो, कारोबार का word use किया करो, so that it's more serious for you.
बिकॉज हमारी जो मेंटालिटी बनी हुई है अपब्रिंगिंग में, तो हम कारोबार को ज्यादा सीरियस लेते हैं, स्टार्टअप को माने या ना माने थोड़ा सा शुगल में लेते हैं. And that, so by the way, first of all, technically तो entrepreneur का मतलब ही ये है कि someone who runs a business for profit. लेकिन हमारा मतलब ये होता है, हम जब entrepreneur का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा बंदा जो limited resources में कुछ करके दिखा दे, तो उसे हम जरा entrepreneur का तमगा दे देते हैं कि चलो यार तुम entrepreneur हो, दूसरे वाले ने अब्बू से पैसे लेके दुकान लगा दी. लेकिन then जो आपने मिसाल दी ना पाक बिजनेसमैन वाला जरा क्रिएटिव है कि वो डिजिटल को एज अ रिसोर्स यूज कर रहा है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और बार्गेन वाला गलती कर रहा है डिजिटल को इग्नोर करके. एंड आजकल जब हमने डिस्कस किया कि कॉल करनी है, सो आई वाज हैप्पी टू डू इट बिकॉज मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि कोविड-19 की वजह से पीपल हैव रियलाइज्ड कि अच्छा इंटरनेट पे बहुत कुछ हो सकता है. पीपल हैव शिफ्टेड टू द इंटरनेट. आजकल लोग ऑर्डर डिलीवरियां सब कुछ नेट से कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं इंटरनेट पे, जो डिस्टेंस लर्निंग हो रही है. ये चीजें जिनको हमने पहले बस सुन के इग्नोर कर दिया था, अभी हम उनको अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर रियलाइजिंग स्लोली इन आवर सबकॉन्शियस कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. So people are going to shift more towards digital even after this COVID-19. ये आप देखिएगा, कल फेसबुक ने 9.99% शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस में, मुकेश अंबानी कंपनी इन इंडिया, ताकि व्हाट्सएप बिजनेस को वो लोग वहां पे अप्लाई कर लें डिफरेंट करियाना स्टोर्स के लिए. दैट लोगों को समझ ही नहीं रहे कि अच्छा मैं उसको यूज कर सकता हूँ. मैं घर बैठे इस कोविड-19 में अपने पास वाले ग्रोसरी स्टोर से चीजें मंगवा सकता हूँ व्हाट्सएप पे. राइट नाउ व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ. माय पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे इज कि वो डिजिटल को यूज कर रहा है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू ऑब्वियसली प्रीच कि आप डिजिटल को एज अ रिसोर्स यूज करो, उसको इग्नोर मत करो. एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आपका पाकवील वाला बंदा आपके बार्गेन के दोस्त से आगे जा रहा है. सो फर्क में सिर्फ ये है की चीज है. that was the bit that I wanted to add. Now coming to the Pakistani thing, so I totally relate to it because my business partner जो 5-6 साल हमने एक साथ काम किया, वो शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया. एंड इसी वजह से कि मतलब so we used to be in Dubai, तो उसको तो एक ये मसला था कि पासपोर्ट नहीं मिलता, ऊपर से the government is not that supportive to run a business. ऑब्वियसली स्टार्ट मुझे थोड़ा सा ये सोच बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सारी बातें हम भी समझते हैं कि बिजनेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली सपोर्टेड. अभी इमरान खान कह रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे स्मॉल बिजनेसेस को, बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स टू बी सपोर्टिव फॉर द एंटरप्रेन्योर्स या द स्टार्टअप्स, ताकि आपने इस तरह कहा उनके आइडियाज चोरी ना हो, उनको ग्रांट्स मिले, मे बी उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम बने, कोई सॉफ्टवेयर पार्क जिस तरह बनता है वहां पे वो ऑफिस ले सके रेंट पे थोड़े कम पैसों में. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एज हिरा सेड, देयर काइंड ऑफ एंटरप्राइज and they're going to build jobs later. तो उनको सपोर्ट करो. ये चीजें मुझे पता है पाकिस्तान में आइडियाज डिस्कस होती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है. बट हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने रियलाइज किया पाकिस्तान आके और पिछले 1.5 सालों में. फॉर पीपल लाइक अस, ऑल 4 of us and all those people जो इन बातों को समझ रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू कैन रूल इन पाकिस्तान बिकॉज अदर्स आर सो numb that they don't understand अभी 2-3 दिन लगा के सीखते हैं कि मैंने बिजनेस कैसे रन करना है. सो इन पाकिस्तान ऐसी मार्केट में जहाँ पे लोग गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करता किसी को, तो उधर इस तरह की मेंटालिटी थी ही कम कि हम बिजनेस अपने चला सकते हैं. एंड इफ यू हैव दिस मेंटालिटी कि अपना बिजनेस रन करना है, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि मैं पाकिस्तानी मार्केट में हूँ, बिकॉज इन दिस मार्केट, ट्रस्ट मी, दीज आर द एक्यूरेट वर्ड्स, यू कैन रूल. बट इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू कनाडा, यू गो टू यूएस, आप पीआर के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे बढ़ के ज्यादा एक्सपोजर वाले लोग बैठे हुए हैं. दे आर मोर क्रिएटिव देन यू, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू. कंपटीशन का लेवल ही वहां पे एक डिफरेंट सतह पे है. Whereas in पाकिस्तान आपके लिए कंपटीशन ही बहुत लो है, एंड यू आर निग्लेक्टिंग ऑल ऑफ दिस ओनली बिकॉज लोगों की सोच, ठीक है, जो आपने दोस्त की मिसाल दी वो ये थी कि मुझे बिजनेस को सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों की सोच जरा डिफरेंट होती है. आई वॉज वंस हो जाओ बेटा, यहाँ पे तो बड़े मतलब आसाइशें हैं, ये वो. मैंने कहा मिसाल के तौर पे तो उन्होंने कहा कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये लोग मंथली पेंशन देते हैं गवर्नमेंट वाले. मैं कहा अंकल, तो मैं यूएस शिफ्ट हो जाऊं ताकि मैं रिटायर होने के बाद पेंशन ले सकूं. तो शिफ्ट होने से और रिटायरमेंट की डेट तक, 60 इयर्स की एज तक
तब तक मैं क्या करूंगा, मैं बैठ के वेट करूंगा कि मैं रिटायर हो जाऊं. So the problem is that these people are so succumbed in that comfort zone कि वो ढूंढते हैं कि मेरे इस comfort zone का डब्बा कहाँ पे ज्यादा सपोर्टिव होगा. और पाकिस्तान जैसे मार्केट में वहां नहीं होता. वहां everyone is gonna kick you away कि जाओ कुछ बन के दिखाओ, जाओ कुछ करके दिखाओ, तुम कौन हो, कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास. This kind of social these things will push you, तुम जाके अपना करो. तो पाकिस्तान जैसे मार्केट में आई सजेस्ट लोगों को कि बैठो एंड जरा सो मार्केट, आप कंपटीशन को आराम से बीट कर लोगे. एंड अब तो एज आई मेंशन्ड अगेन, मैं उसको रिपीट करता हूँ, कोविड-19 की वजह से लोगों को डिजिटल की इंपॉर्टेंस और रियलाइज हो गई है. कंपनीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स एज वेल एज द होल पब्लिक इज गोना शिफ्ट टू द डिजिटल. ई कॉमर्स बढ़ेगा, अभी डिस्टेंस लर्निंग बढ़ेगी, ऑनलाइन कोर्सेज अभी आएंगे. आप देखिए इस कोविड-19 के बाद लोग डिफरेंट आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फॉलन इन लव विद हाउ दे यूजिंग द डिजिटल वर्ल्ड नाउअडेज. Yeah, I think that's really true कि हमारे पाकिस्तान में मसले बहुत ज़्यादा हैं. दैट मतलब जहाँ पे ज़्यादा मसले होते हैं वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है हल करने के लिए. सो दैट्स रियली ट्रू. एंड जहाँ तक आपने बात की कि अभी लोग ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ आ रही है. सो आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च और मुझे एक रिपोर्ट मिली और उसमें मेंशन हुआ था कि पाकिस्तान इज द 4th most popular like country for freelancers. 9% of the freelancer पूरी दुनिया में जो है those are in Pakistan. So I think नादिया आपका काफी ज्यादा मेरे ख्याल में इस डोमेन में एक्सपीरियंस है, ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह या इस साइड पे. तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फ्रीलांसिंग जो है ये अगर बंदा करे तो क्यों करे? क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं या इज जस्ट अ होक्स? इससे ये मतलब ये कमर्शियल्स हमें अक्सर फेसबुक में नजर आते हैं कि पैसे कमाए, ये करे. क्या ये हकीकत है? हमारे नौजवान जो है यूजुअली उस पर क्लिक भी नहीं करते, यूजुअली देखते भी नहीं है कि क्या मतलब ये इस साइड पे क्यों चला जाए. अगर तो जा सकते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको और इसका आंसर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि लोग इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज दे डोंट बिलीव इन व्हाट कम्स ऑन द इंटरनेट. और वो इस तरह के एड्स को इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये वैसे ही हाइप क्रिएट की हुई है, सो कोई पैसा वैसा नहीं आना. हमारी कौम का सबसे बड़ा जो अलमिया मैं कहूंगी कि पैसा है. ऑब्वियसली मनी इज द नेसेसरी फॉर लिविंग, लेकिन अगेन ऑन द सेकंड हैंड आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और आपको थोड़ा सब्र का मुजाहरा भी करना पड़ता है फ्रीलांसिंग में. इफ यू आर रनिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स एंड अगर आप अपना कोई ब्लॉग चला रहे हो, ब्लॉग की मैं एग्जांपल दूंगी. व्हेन आई टीच पीपल अबाउट ब्लॉगिंग, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है पैसे कितने अरसे में आएंगे ये बताएं. तो आपको पहले ही आपने थोड़ा बहुत मेहनत तो उसके ऊपर करनी है, थोड़ा कंसिस्टेंसी तो दिखानी है, तब आपको पैसा आएगा. बिकॉज मैं अभी बताऊंगी कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आजकल मैं लोगों को जो सजेस्ट कर रही हूँ, जो भी मुझसे पूछा मैं उसको कहती हूँ फाइवर. बे इंतहा का काम आपके पास पड़ा हुआ है, इंतहा के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए, इंतहा के टैलेंट और स्किल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं वहां पे. For example, if you're good at writing academic writing or writing business proposals or giving someone making business canvas model for someone, स्पेशली फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स, तो आप वहां पे जाओ, जस्ट एक गिग बनाओ, पोस्ट कर दो कि मैं ये काम कर सकता हूँ. नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है इन छोटी छोटी चीजों को करने का. लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए करे, कोई दूसरा उनके लिए काम करे, उनको प्रोजेक्ट्स बना के दे, उनको प्रपोजल लिख के दे. अब देख लें फेसबुक पे इतने ज्यादा लोग पोस्ट कर रहे थे, स्टार्टअप ओनर्स स्पेशली, मैं उनकी प्रोफाइल पे देख रही हूँ, वी नीड अ ग्रांट प्रपोजल राइटर. ठीक हो गया. और मुझे काफी ज्यादा लड़कियां यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करती हैं कि वी आर गुड एट ग्रांट प्रपोजल राइटिंग, तो हम कहाँ जाएं. तो मैं उनको कहती हूँ फाइवर, गो ऑन फाइवर, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. आप जाओ, आप एक बार देखो तो सही, आप उसमें मेहनत तो करो, कुछ अर्सा आप काम करो, फिर आप देखोगे, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आपने करना है और कैसे आप उसमें एक्सेल कर सकते हो. और बाकी आपके पास आजकल अर्निंग का जहां पे बात है, तो आप इस फेसबुक से जिसपे हम पूरा दिन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, ये इंस्टाग्राम जिसको हम जस्ट पिक्चर्स पोस्ट करने
करने के लिए यूज करते हैं, इसको आप अर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हो, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. दिस इज टाइम फॉर यू टू बी इन द डिजिटल साइड. दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी इन द मार्केट ऑफ डिजिटलाइजेशन. आपके पास डिजिटल मार्केट में आने का या अपने आप को या अपना नाम बनाने का यही एक टाइम है. आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ सोचो कि आपके पास कौन सी स्किल है, कौन सा टैलेंट है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर गुड एट स्पीकिंग, ठीक हो गया, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मैं उनको कहती हूँ कैमरा पकड़ो, वीडियोस बनाओ, पोस्ट करो यूट्यूब पे. यू विल गेट द टारगेट ऑडियंस, यू विल गेट द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज आउट देयर. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, यू जस्ट नीड टू गो फॉर इट एंड यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट. आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी आपके पास आ जाएगा. लोग कहते हैं हमें राइटिंग के लिए कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा. आप सर्च तो करो क्लाइंट्स, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आउट देयर इन द मार्केट. freelancer.com है, ebaywriter.com है, उस पे इतने अच्छे अच्छे, वहां पे तो आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जस्ट 2 प्रोजेक्ट्स करो या 3 प्रोजेक्ट्स करो एंड वंस यू गेट $100 इन योर अकाउंट, दे इमीडिएटली रिलीज योर फंडिंग्स और योर अर्निंग्स. ठीक हो गया. और $200 कमाना, आई गेस 4 राइटिंग प्रोजेक्ट्स या 3 राइटिंग प्रोजेक्ट्स आप करो, आराम से आपके अकाउंट में आ जाएंगे. सो बैठे बिठाए 3-4 दिनों में आप $100 ले सकते हो. सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि आपने स्किल को, अपनी को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है. सिर्फ 2 दिन की ये कहानी है. मैं लोगों को कहती हूँ कॉपी पेन पकड़ो और लिखो कि मेरे पास ये टैलेंट है, इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कौन कौन सी कोर्सेज करके मैं इस चीज को मजीद अपने लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ. कोर्सेरा आजकल इतने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, यूडेमी प्रोवाइड कर रहा है. आपके पास कोई स्किल नहीं है, जस्ट लर्न दैट स्किल एंड अर्न इट. You can excel in anything. Just you need to explore and you need to give time to yourself. हम क्या करते हैं, पूरा दिन सो के गुजार देते हैं. सीरियसली, हम पूरे दिन यहाँ मूवीज देख के और सो के गुजार देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं यार कुछ करने को नहीं है, बोर हो गए. आप करने लगो, आपके पास बहुत कुछ है. बेइंतहा की दुनिया है, छोटे से इंटरनेट पे बहुत कुछ है आपके पास. नहीं, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक चीज को जरा समझे. एक मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट है, उसमें क्या देखा जाता है. सपोज यू गो समवेयर, वहां पे क्या देखा जाता है कि आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है या पीएचडी किया है. मतलब हर एक जॉब के अगेंस्ट ना एक तनख्वाह होती है. लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स है, मतलब अगर आप यूरोप साइड पे देख लें, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे स्किल बेस्ड जो है ना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है. और मतलब वहां पे आपके स्किल को देखा जाता है, डिग्री वगैरह को इतना नहीं दे. कहाँ पे मुझे मैं पढ़ा था, गूगल या फेसबुक में, उन्होंने मेरे ख्याल में वो डिग्री की रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दिया है कि आपके पास अगर स्किल है, इफ यू कैन लाइक गिव मी समथिंग दैट माय कंपनी नीड्स, मुझे आपकी पीएचडी का क्या करना है. तो मतलब ये ज्यादा स्किल फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट आ रही है. एंड बेस्ड ऑन दैट, सलमान, मैं थोड़ा सा आपके साइड पे दोबारा इस चीज पे आऊंगा कि अक्सर लोगों के पास स्किल होता है, उनके पास डिग्री भी होती है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू लाइक कैश दैट इन. तो कहाँ पे वो ब्रांडिंग का एक हो जाता है, या पता नहीं उनको वो अपना जो उनके दिमाग में एक बात है वो मुंह तक नहीं आती, या प्रेजेंटेशन उनकी ऐसी नहीं होती. कितना आपको लगता है ब्रांडिंग मैटर करता है इस एस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट में या आपकी स्किल्स लर्निंग में? That's like the कमजोर स्पॉट that you just hit. मैं इस मामले में बड़ा पॉजिटिव हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज की बहुत लैकिंग है. मैं मिसाल दूंगा, अभी नादिया की जो दोस्तों ने बोला कि हमें ग्रांट राइटिंग आती है, इस तरह जब यूनिवर्सिटीज के टाइम खत्म होता है और बैचलर खत्म होता है, तो टाइम आता है कि हमने अपनी सीवी बनानी होती है और ओपन डे के लिए रेडी होना पड़ता है. तो आई नो दिस, एंड आपके साथ, आप लोगों के साथ हुआ होगा, आप लोग जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी गए हैं, आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा कि एक दोस्त आएगा तुम्हारे पास और बोलेगा यार भाई की सीवी तो बना दे. एंड ये जो सवाल है, इस पे जरा सोचना इस तरीके से है कि सीवी तो बना दे, मतलब जो हमें डर होता है किसी के सामने बात करने का, किसी के सामने प्रेजेंटेशन का, वो इसलिए होता है कि वो रियल टाइम होता है और हम रियल टाइम में गलती नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो वापस नहीं ले सकते हम लोग. लेकिन सीवी इज जस्ट अ पेपर जो आप 100 मरतबा एडिट कर लो, एंड सीवी पर आप सिर्फ अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है. एंड दीज किड्स डू नॉट इवन नो कि इन्होंने सीवी कैसे बनानी है. अगर इनको ये नहीं पता, एंड नाउ फोकस ऑन द कीवर्ड्स, इफ यू कैन नॉट डिस्क्राइब हु यू आर, हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई शुड आई हायर यू, जब आप वो पहला कदम नहीं कर सकते. तो
आपने इस तरह करके मास्टर कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडीज आउट देयर आर नाउअडेज पुअर, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज ही खुली हुई हैं पैसे कमाने के लिए। वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज, हर तरफ से ग्रेजुएट निकल रहा है, और ये ग्रेजुएट की जो मेंटेलिटी है वो एक आम स्कूल के मैट्रिक के लेवल की होती है। अभी भी वो ग्रेजुएशन के बाद भी ना इंग्लिश सही तरीके से बोल सकता है, ना उर्दू सही तरीके से बोल सकता है, ना सीवी बना सकता है, ना प्रेजेंटेशन कोई कर सकता है, और जीपीए भी उसका पता नहीं कितना होता है, 2.5 2.1। मैंने कहा तुम 3 से नीचे पास ही ना करो बच्चे को, इफ ही कैन नॉट कम इनटू द मार्केट एंड कम्पीट विद इट, जिस जो लेवल बना हुआ है मार्केट का। सो गलती हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की है। एज यू नो के पर्सनल ब्रांडिंग वाली बात आपने डिस्कस की, तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम ऑलवेज प्रीचिंग इट कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, अपनी ड्रेसिंग इंप्रूव करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव करो। पीपल कम टू मी एंड से कि ज़करबर्ग तो एक ही शर्ट पहनता है ग्रे कलर की। मैं टेल हिम कि ज़करबर्ग अभी जब बिलियनियर हो गया तो उसके बाद एक शर्ट पहनता है। आप बिलियनियर होने के बाद शर्ट ना भी पहनो तो लोग कहेंगे दैट्स द न्यू कूल, बिकॉज आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हो दैट पीपल फॉलो यू। लेकिन इस वक्त टू get socially accepted, to enter the doors, you have to dress up well, you have to speak well, you have to have proper दाढ़ी मूंछ बाल सब कुछ। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है because they have never seen कि इसका फर्क क्या पड़ता है। once they see कि अच्छा हाँ इसका फर्क पड़ता है, then they come to me again कि सलमान भाई बताएं ना, हम शॉपिंग कहाँ से करें, हम बातें कैसे सीखें, हम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। एंड आई थिंक ये मुझे उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना हेरा को। ये स्कूल में उस टीचर को सिखाने की जरूरत है हमें, जो हमें वो टेक्निकल स्किल सिखाता है, इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस हो या लॉ हो, व्हाटएवर। उस कम्युनिकेशन उस टेक्निकल स्किल के साथ उनको हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाने चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि अपने करिकुलम में एक कोर्स डाले इस तरह का, चाहे वो एक सेमेस्टर के अंदर हो, चाहे वो एक वीक के अंदर हो। एंड आई गॉट अ कॉल रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी से, पेशावर की यूनिवर्सिटी, इतना बताया था। एंड लेडी सेड कि सलमान पीएचडी के स्टूडेंट्स ने अपना डिफेंस फेल कर दिया, पीएचडी के स्टूडेंट्स ने अपना डिफेंस फेल कर दिया, मास्टर तो छोड़े, डिफेंस वो जो अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं लोग, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता था। और पाकिस्तान टवेरा कंपनी आई थी और उन्होंने हमारे बच्चों में से किसी को हायर नहीं किया, और जाते जाते हमें ये बोला कि इन सब की कम्युनिकेशन जरा इंप्रूव करते हैं। सो कैन यू सलमान प्लीज कम एंड एक सेशन दे देंगे इस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, मैं फ्री में आ जाऊंगा, लेकिन मैं फलानी तारीख को आऊंगा क्योंकि मैं वैसे भी पेशावर आ रहा हूँ उस दिन। तो एक तीर से दो शिकार। कहते नहीं आप इस डेट को आ जाए। मैंने कहा ओके, नाउ दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड द रिक्वायरमेंट्स, तो अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट बोलता हूँ कि आपके लिए खास अगर आऊंगा, सो इज देयर एनी बजट? एंड शी सेड नहीं बजट तो नहीं है। मैंने कहा ओके, यू आर एग्रीइंग टू पे दोस प्रोफेसर्स जो उनको वो स्किल नहीं सिखा रहे जो स्किल यूज करके वो प्रोफेसर की बाकी टीचिंग्स को प्रेजेंट करेंगे या बेचेंगे, बट यू नॉट एग्रीइंग टू पे मी। तो शी सेड कि सलमान आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? I'm not being negative. I'm trying to change your mentality that you need to focus on people like me or anyone else out there जो आपके बच्चों को टेक्निकल के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएं। And that is the answer to your question, दानियाल, कि उनके पास डिग्री होती है बट सीवी नहीं बना सकते। सो आप सोचो वो कैसे इस अपने आइडियाज पे बिलीव करेंगे कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या एंटरप्रेन्योर बनता हूँ या I actually made a video about this on YouTube. मैंने उसका नाम रखा है You Will Never Be Rich। उसकी वजह ये थी कि, और वो बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक रियलाइजेशन हुई। मैंने कहा ये बिल्कुल एक्यूरेट रियलाइजेशन है। बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे टीचर सब एक बात करते हैं, बेटा गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। सो ये जब चीज हमें बार बार बताई जाती है तो इट्स लिटरली इंजीनियर्ड कि हमने गलती नहीं करनी। आई कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। अच्छा, जब आपने गलती नहीं करनी जिसका मतलब आपने सिर्फ वो वाले काम करने हैं जिनका आउटकम आपको पता है। जिनका आउटकम आपको नहीं पता आपने वो नहीं करना, बिकॉज तब गलती होगी। तो जब आउटकम पता है आपको, उसका मतलब है once again you are in that box, that comfort zone, and if you ever think that I want to go out of this box, तो आपको बात याद आएगी अम्मी अब्बू की या टीचर की, गलती नहीं करनी। So you come back again, and that is why you never think about starting your business or thinking about the new idea that you have, because आपको आउटकम नहीं पता। So उस आउटकम ना पता होने की वजह से वो हमें गलती लगती है, and we stay in our comfort zone। हम कहते हैं बस जॉब के लिए ही अप्लाई करता रहता हूँ, जॉब के लिए अप्लाई करता रहता हूँ। हालांकि I know, as Hira said, not everyone is built for an entrepreneur business journey, लेकिन कुछ होते हैं उसमें और वो entrepreneur तक जाते ही नहीं है क्योंकि वो उस comfort zone में रहते हैं। हालांकि they can become great entrepreneurs। बिल्कुल ऐसा ही है। So गलती नहीं करनी। हिरा, आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में काफी गलतियां जाहिर सी बात है जैसे हर इंसान से होती रहती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस फेलियर्स and it is because of these mistakes that we learn from. मैं थोड़ा सा इसको जेंडर के साइड पे लेके जाना चाहूंगा
फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखिए, हमारे एक बहुत रोल मॉडल हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जाए, वो भी एक बिजनेस वुमेन थी। मतलब हमारे सामने एक इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप क्या समझती हैं कि हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पे बजात एक खातून आप वेलकमिंग फील करती हैं, या जो जितनी भी हमारी फीमेल यंग लीडर्स हैं जो कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेस की फील्ड में आना चाहती है, क्या एडवाइस होगी उनके लिए आपकी तरफ से कि वो अगर आना चाहती हैं कैसे आ सकती हैं, या इज इट अ गुड फील्ड फॉर देम टू बी इन, एंड इज इट सस्टेनेबल फॉर अ फीमेल टू बी इन दिस बिजनेस? So, Daniel, पहले तो थोड़ा सा ना I will comment back on what you asked Salman, because उन्होंने सारी चीजें list out कर दी हैं which are needed if you want to land a job or do business. But I just wanted to add one small thing to that, which is very important for me when I'm hiring somebody in my company. Good communication skills, good skills, technical, all is perfect, but character ठीक होना बंदे का will really determine कि आप उस जॉब को ना कब तक लेकर जाएंगे. By character I don't mean कि मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, but I mean कि is that person honest in the job, सही है, is the person trustworthy, सही है. So two people will with equally good communication skills, and even a person with better technical skills will not go long way in a job or in a company अगर उसका ये वाले character issues हैं तो. दूसरी जो आपने बात पूछी कि हमारी सोसाइटी में whether is it good for women to come and do business or is it easy or not, I'd say it is generally not easy to do business because आपने बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना है. You have to build a team, a product. There are so many aspects to it. It is generally very easy to do a job, okay, because you're told what you have to do. It's 9 to 5 thing, so it's much easier. As far as अच्छा, फिर जो आप जेंडर या किसी टाइप के हरासमेंट या बुलिंग की बात करते हैं तो वो जॉब में भी होती है, वो बिजनेस में भी होती है, so it doesn't really make any difference, but we have to accept कि yes, that is what happens in our society. ठीक है. When I started initially, and at that time I was pretty young, right? So I even faced it in Lahore ki, there was a boys club because you can't really be friends with boys, so they will not include you in their inner circles, they will not share information. So सबसे बड़ा मसला being a woman is access to information, क्योंकि एक opposite gender के लोग जो कि society में बहुत freely बाहर घूमते हैं, उनके पास बहुत सारी street knowledge होती है और वो आपको वो नॉलेज ट्रांसफर कभी होता ही नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होती. बहुत सारी चीजें आप अपने दोस्तों से गपशप में सीख लेते हैं, राइट? दे आर जस्ट टेलिंग यू मैंने ये किया वो किया, वो कम्युनिकेशन होती नहीं है. आई फील द फीमेल कम्युनिटी इज सो स्मॉल राइट नाउ, females who are doing something, कि उनके पास ना वो सारी नॉलेज आप तक ट्रांसफर नहीं होती. सो दैट इज वन इशू. दूसरी बात, आई थिंक जहां तक बुलिंग हरासमेंट की बात है, वो शायद मर्दों के साथ भी होती है बुलिंग. I think you just have to be strong as a person कि यार उन सब चीजों से you have to go past and achieve something. और वैसे भी अगर आपने business करना है, so I believe सबसे important चीज है उसमें you have to be tactful and diplomatic, क्योंकि आप किसी के साथ भी खराब नहीं कर सकते. So for example, if I'm working with different hospitals and government institutions and I am working with, अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास भी जाती हूँ, उनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाती हूँ, ठीक है, सो इट हैज हैपेंड यार कि मुझे एक अजीब कोई मैसेज आ जाएगा कहीं से, ठीक है, बट आई नो कि आई कांट इवन रिप्लाई रूडली बिकॉज इफ आई डू दैट इट्स ओवर देयर. सो यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल. लेकिन मेरे ख्याल से इफ यू सेट योर माइंड टू समथिंग कि यार मैंने करना है, तो आप कर लेते हैं, And if there's a woman who wants to come and do business, तो सबसे पहले she has to understand कि यार उसने ये करना है. So a lot of people will, start putting labels on her कि यार oh she's too outgoing, oh she wears this, oh she wears that. सबसे पहले शायद उसके घर वाले करेंगे. Everybody's घर वाले. I'm blessed to have parents like that. लेकिन कुछ लोगों के parents थोड़े conservative होते हैं. तो पहले आपको अपने parents को prove करना है that you mean business. फिर आप अपने inner circle of friends and everybody, because I think time proves everything. If you just keep on doing the right things, तो लोगों को समझ आ जाता है कि यार okay, this person means business. खुद ही समझ आ जाता है. You don't have to put in any extra efforts. Then lastly,
देखिए, Islam is my religion as well and I really respect it, ठीक है, लेकिन I feel like कि कभी भी हमें अपने morals को define करने के लिए religion की support नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि there can be people from different religions, there can be people from different cultures, ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर चीज का बेसिस आप इस्लाम के अंदर ढूंढने कि क्योंकि इस्लाम में ऐसे हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, इट वाज अ डिफरेंट टाइम, इट्स अ डिफरेंट टाइम नाउ, राइट. सो आई थिंक यू शुड जस्ट कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स. ये नहीं है कि यार इस तरह हुआ था तो ऐसे. रिलीजन इज बिटवीन मैन एंड गॉड, उसको वहां पे रखें. और क्योंकि आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप जब ये कहते हैं ना रिलीजन, तो फिर लोग बहुत सारे काम करते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला करेगा. अल्लाह ताला नहीं करेगा, आप करेंगे, यू हैव टू डू इट. या बहुत सारे अगर वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो वो कहते हैं कि यार बस नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट. अल्लाह ताला की तरफ से है, बट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड you're a Muslim, you're a woman, create new examples, it's okay, it's quite all right. तो मेरे ख्याल में ना internally you have to be very strong, and you have to be emotionally very stable. अगर आपने पाकिस्तान में स्पेसिफिकली पेशावर में बिजनेस करना है तो I'll say that. बहुत जगहों पे आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलती है, आपको बड़ी प्रिविलेज्ड वो चीजें भी मिलती हैं, दैट्स ऑल्सो ट्रू. लेकिन मेरे ख्याल से फॉर अ मैन एंड अ वुमन, नर्व्स ऑफ स्टील आर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू. दैट्स आई थिंक वेरी गुड कि आप ये चीज सामने लेके आई आपने, कि हमारे लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, हम कहते हैं ये बस अल्लाह ताला करेगा. मतलब हमारी लाइफ को कम्प्लीटली हम छोड़ देते हैं कि अब अल्लाह करेगा, लेकिन साथ में आपको, मतलब हर रिलीजन में आई बिलीव ये बताया गया है कि आप मेहनत आप करो, इनिशिएटिव आप लो, सपोर्ट आपको मिलती रहती है. मतलब किस्मत, अगर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव बताऊं ना, जितना आप हार्ड वर्क करते हो उतनी ही आपकी किस्मत बेहतर होती जाती है विद टाइम. सो आई थिंक दैट्स लाइक टू समराइज इट इन वेरी फ्यू वर्ड्स कि किस्मत और मेहनत का बहुत अच्छा, मतलब आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है. आप हार्ड वर्क करो, किस्मत आपकी, और अल्लाह की तरफ से भी आपको सपोर्ट उतनी ही ज्यादा मिलती रहती है. सो विद दिस मेरा थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन वो भी आपकी तरफ ही है हिरा. काफी मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है हमारी सोसाइटी में, उनको एक चीज का काफी खौफ होता है, काफी डर होता है कि हमारा आइडिया जो है या हमारा जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या जो भी सर्विस है वो चोरी हो जाएगा. मतलब मार्केट में हम लेंगे तो वो करते ही नहीं है. एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज एप्रेस टेक्नोलॉजीज का जो अपना एक प्रोडक्ट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, विच यू मेंशन कि वो इट्स नॉट समथिंग कि इट्स नॉट इन्वेंशन कि फर्स्ट टाइम हम नहीं कर रहे, इट एग्जिस्टेड समवेयर एल्स और आप उसको यहाँ पे कर रहे हो एक नए तरीके से. सो व्हाट्स योर मैसेज ऑन दैट कि अगर कोई सपोज मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात से डरना चाहिए? अगर तो नहीं डरना चाहिए, so what are the points, what are the principles that I have to follow in order to like not be afraid of bringing my idea into the market? So Daniel, on that there's a book by Peter Thiel, 0 to 1. उसने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. So वो ये कहता है कि अगर आपने बहुत सक्सेसफुल बिजनेस करना है, या तो आपको 10 times cheaper होना चाहिए than competition, या 10 times better होना चाहिए than competition. ठीक है? I will elaborate it in this way कि देखें, आप एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं, सही है? फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीबडी इज मेकिंग अ बर्गर, बहुत सारे बर्गर जॉइंट्स हैं, ठीक है, बट व्हाई इज मैकडोनल्ड्स सो सक्सेसफुल? इट्स प्रॉब्ली नॉट बिकॉज ऑफ देयर बर्गर, इट प्रॉब्ली डजंट इवन टेस्ट द बेस्ट, ओके? It's all of the systems that goes behind it, the queuing theory, the SOPs that they have developed. तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है जो कि मार्केट में और लोग नहीं कर रहे, ठीक है? आप एग्जैक्ट एक सिमिलर चीज के साथ आ भी जाएंगे तो आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे फिर. However, अगर आपका प्रोडक्ट कॉमन है तो आप अपने सिस्टम्स को डिफरेंटली डेवलप करें. आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ वे. आप अपनी टीम को ऐसे बिल्ड करें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं. आई मीन, अब तो इस टाइम पे पेप्सी या कोक, द ड्रिंक दैट इट इज, वो एक ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता. बहुत सारे उसी तरह के कोलाज निकले, अमृत कोला, इस्लामिक कोला, whatever. The product was almost the same. They were lacking the distribution channels and all of the effort that goes into marketing it, distributing it, and all of that. ठीक है? When Q Mobile came in, इनिशियली वो लॉट में सिर्फ फोन लेते थे, चाइना में पता भी नहीं होता था कि ये कौन सा फोन है, और फिर उसको बस टैग कर देते थे क्यू मोबाइल. बट दे वर ब्रिलियंट इन मार्केटिंग. उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा लो थी, सो दे फिगर्ड इट आउट. द प्रोडक्ट वाज नॉट सुपीरियर. एप्रेस में
लोग कर रहे हैं बहुत कुछ, बट दिस इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं वो कहीं और नहीं है। हमारा एक एडवांटेज ये भी है कि चले टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है, सर्जरी होती है उस डिवाइस से, ठीक है। तो अंदर किसी ने खोल के नहीं देखना कि यार इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, एज लॉन्ग एज इट कट्स द टिश्यूज परफेक्टली, सर्जरी परफेक्ट हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। आवर एडवांटेज मोर इज कि एक डिवाइस $20,000 की बिकती है अमेरिकन वैली लैब की, हम वो डिवाइस $3,000 में दे रहे हैं। Nobody can beat that. Nobody can beat that. Chinese devices can't beat it. वो भी $6,000-7,000 के देती हैं। So you know, आपको फिगर आउट करना होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। That having said, अगर आपके पास कभी, मेरे ख्याल से अगर आपके पास कभी भी कोई आइडिया है उसको आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए मार्केट के अंदर। ये नहीं कि चोरी, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया चोरी हो जाएगा तो वो बिजनेस है ही नहीं। फिर आइडियाज आर वर्थ अ डाइम, मतलब व्हेन आई लाई डाउन इन बेड मेरे दिमाग में 1,000 आते हैं, इसका ये तो मतलब नहीं आई विल टर्न देम इनटू बिजनेस। तो अगर आपको ये लगता है कि यार आइडिया चोरी हो जाएगा तो बस फिर आप ना करें बिजनेस, मतलब इट्स ओके, यू नो। आई थिंक इन्वेंशन सारी हो भी चुकी हैं, अब हम क्या बना लेंगे और नया, ठीक है। But you have to focus more on business models and all of that, unless you're Elon Musk, जो कि मुझे लगता है one in a billion लोग होते हैं। तो I think focus on, you know, business models and your distribution channels and marketing and all of that. Yeah, I think मतलब what I learned from your talk is that कि काफी perspectives होते हैं, मतलब it's not just the idea as a standalone thing जिसको हमने देखना है, उसकी marketing, उसकी supply chain, उसकी branding, काफी जगह इनोवेशन आ सकती है। मतलब हमें चीज को एज इन टोटल देखना चाहिए लेकिन उसको ब्रेक डाउन भी साथ में करना चाहिए, काफी एस्पेक्ट्स में हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं। सो या दैट्स आई बिलीव अ ब्रिलियंट टेक ऑन दैट। सो विद दैट सलमान, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आजकल लॉकडाउन है, दो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ या आप एक ही जगह खड़े, लेकिन लॉकडाउन में किस टाइप के बिजनेसेस पॉसिबल हैं, क्या मतलब यंगस्टर किस टाइप के बिजनेसेस में काम कर सकते हैं आजकल? I think we lost Salman. Would you like to ask, like answer this question the same कि आजकल लॉकडाउन में क्या, क्योंकि डिजिटल स्पेस इज द प्लेस जिसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। So I think like let's wait for Salman. Salman, are you with us? We can't hear you. Let me unmute you. आवाज आ रही है सलमान आपको? यस यस आ रही है। अच्छा, आपको क्वेश्चन सुनाई दिया मेरा या मैं दोबारा रिपीट करूं? नहीं आई एम रियली सॉरी, यू विल हैव टू रिपीट इट। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि बिकॉज देयर इज लॉकडाउन आजकल, ऑल्दो आप गाड़ी में घूम रहे हैं बाहर, तो व्हाट इज सजेस्ट किस टाइप के बिजनेसेस जो हैं हम आजकल जो है हमारे नौजवान जो है वो कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि हम आजकल अवेल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ऐसी चीज कि जो हम लोग घर बैठ के कर सकें वो ब्लॉगिंग ही है। मैं लोगों को बहुत सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है आप खुद भी राइटिंग में अच्छे नहीं है लेकिन आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं राइटिंग पे, तो आप राइटर्स हायर करके उनसे लिखवाएं। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग चीजें जो मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप आप इस वक्त बिल्ड करने का ना सोचें, क्योंकि वी नेवर नो कि कोविड-19 कब खत्म होगा। वी डोंट नो कि हम अपनी लाइफ में वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। वी डोंट नो हम दोबारा कहीं बैठ पाएंगे एक साथ मीटिंग के लिए या नहीं, और मतलब NIC जा पाएंगे या नहीं, दुशल जा पाएंगे या नहीं। तो आप ऐसी चीजें करें जो घर बैठ के एक बंदा चला सकता है उसको। सो these things इंक्लूड ब्लॉगिंग हो गया, आपका ड्रॉप शिपिंग हो गया, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं। मैंने इसके लिए असल में उस दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने डाली थी यूट्यूब पे कि 3 ways टू मेक मनी ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन लॉकडाउन। उसमें मैंने एक यही बोला कि आप ब्लॉगिंग करें, आप ब्लॉगिंग में वट एवर नीश यू वांट टू फॉलो, उसमें आप जिस मतलब कैटेगरी में आप बात करना चाहें उस पर आ जाएं। उसके अलावा आप ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग इन सिंपल वर्ड्स इज कि मैं यहाँ बैठे बैठे US में एक लेडी को अपने बेबी के लिए एक स्पेसिफिक टॉय बेच सकता हूँ, और वो बनाया चाइनीज किसी बंदे ने होगा। मेरा काम सिर्फ मार्केटिंग होगा,
when she buys it तो वो Chinese बंदा मेरे लिए उसको deliver कर देगा उसी US वाले lady के पास. This is called drop shipping. So you do not have to invest money on putting up a setup for factory और वहाँ पे toys की manufacturing. ये सारे खर्चे आपके खत्म, चीज already बन चुकी है. You just have to help them in marketing और उनकी वो चीज बेचनी है lady पे, and you will get a proper big affiliate commission. उसके अलावा आप करें YouTube वीडियोस. मैं जिस तरह अभी नाजिया ने बोला, एंड पाकिस्तान में YouTube का स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जितने ज्यादा यूट्यूबर्स आ रहे हैं उतने लोग और YouTube देखना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए चांस अच्छा है इस वक्त कि आप YouTube पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करें, एंड देयर इज अ हैवी चांस के लोग आके आपके कंटेंट पे स्टम्बल करेंगे, एंड इफ दे फॉल इन लव विद इट दे आर गोना वॉच इट. अब लोग कहते हैं कि हम किस बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि ठीक है, अब अगर आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि आजकल हमारी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, तो आप टीचिंग स्टार्ट कर दें ऑनलाइन यूट्यूब पे. एंड आई टेल पीपल, इफ यू नो इवन 10% समथिंग 10% बेटर देन समवन एल्स, जस्ट 10%, तो आप वो भी सिखा सकते हैं दूसरे को. मतलब इफ यू नो कुकिंग, आजकल आप घर पे कुकिंग करा सकते हैं. इफ यू नो मेकअप, आप मेकअप की वीडियोस बना के अपलोड करें. इफ यू नो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उस पर डालें. इफ यू नो अबाउट आई डोंट नो CV राइटिंग, आप उस पर वीडियो बना लें. एनीथिंग दैट यू वांट and that you know a little bit better than someone else, आप उस पे वीडियो बना सकते हैं, and people would love to come and learn from you. जब मुझे रियलाइज होगा कि आपको मेरे से ज्यादा पता है तो मैं आऊंगा, आपकी वीडियो देखूंगा. These are few things जो कि लोग कर सकते हैं घर बैठे बैठे आजकल, but people don't realize it कि मतलब ऑनलाइन काम करना इतना आसान है. It's really easy. I don't know, you just have to take the first step and then you figure out, okay, this is how the path is ahead of me. Hey. Okay, yeah, I believe online space में काफी ज़्यादा opportunities हैं that we have to explore. उसके साथ skills भी important है, उसके लिए online courses भी हम कर सकते हैं, because वही बात कि if you are not able to like sell your skill, तो वो इतने फायदा आपको नहीं दे सकता. So like make a schedule. that what I would recommend is, जितने भी youngsters हमें देख रहे हैं, कि आप साथ में skills development भी focus करो, साथ में online space में काम करने पे भी फोकस करो, मतलब make up like balance between these two things. So with this I have a very like personal question to both of you. like अभी आजकल लॉकडाउन है, काफी चीजें ऐसी थी जो कि मतलब लाइफ में आप पहले मतलब नहीं कर पाते और आपको टाइम मिलता है घर में. So is there anything that you always wanted to do but you could not do it, और अब जो है आपको टाइम मिला और आपने किया? It can be anything, like maybe workout or something like that. So हीरा, आपने लॉकडाउन में आजकल क्या कर रही हैं आप? So Danial, actually to be very honest, I'm loving this lockdown. सही है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वैसे भी information की quality, communication quality drop हो गई है. So what I'm doing in the lockdown is like I'm not pushing myself कि यार मुझे ये achieve करना है, मुझे वो achieve करना है. I feel like this holiday came into my life after 5 years. ठीक है, so 5 साल बाद मुझे लगा कि I have a bit of time जिसमें मैं relax कर सकती हूँ. So I listen to music, I just go with the flow, I'm absolutely calm. I'd go out for a walk, and the most that I'm doing is I'm connecting with my family, I'm spending more time with them, all of my siblings are home. So it's like, for me, it's pretty much party time. I love it. But I'm not doing anything specific. यार अब इस लॉकडाउन में भी कुछ अचीव करना है, बस कुछ करना है, बस I just want to live, and that's what I'm doing. So one of it's you're relaxing nowadays. Absolutely, yeah. Perfect. Salman, what about you? I hope you are with us. आप कोई ऐसी एक्टिविटी हो या कुछ हो जो आप कर रहे हो? I think Salman got busy. But anyways, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. So with that, I think I'll take this opportunity to thank all of our panelists. Nadia was with us, lekin she had another meeting, so unfortunately she had to leave earlier. Lekin I would like to thank Hira, you, Salman, and Nadia for joining us and taking time out of your schedules. It's a wonderful opportunity that हमारे youngsters इसको देखेंगे, वो कुछ सीखेंगे इससे. They will learn something from you because you guys are the role models in Khyber Pakhtunkhwa, and I think the whole Pakistan. You guys are successful. You guys have made it. How can the other young people be, like learn skills that you guys have learned? So thank you very much for your time again, and please keep following our Facebook pages. We'll be live probably next week on a new topic with new panelists.
So thank you very much and Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा.